So we were doing benefits in the last class. ठीक है, बेनिफिट्स कर रहे थे. बेनिफिट्स में क्या क्या हुआ कि बेनिफिट्स क्या होती है, बेनिफिट्स क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. अभी मेजर पर्पस बेनिफिट्स का वेलफेयर ही है या कुछ और भी रीजन है. एग्जांपल्स ऑफ बेनिफिट्स, देयर आर मेनी बेनिफिट्स व्हिच आर स्टैट्यूटरी. देयर विल बी अनदर क्लास when I'll be telling you what is statutory benefits. Just for now, you understand that statutory benefits are the mandatory benefits that the organization has to give because it is a law by the government. Okay? और non-statutory benefits, these are good to have. Organization अपने अपने resources और अपनी resource की capacity के हिसाब से देती है benefits, which are good to have things. अलग-अलग organization अलग-अलग benefit देती है, ठीक है? और benefits को implement करने का pros and cons दोनों होता है, ठीक है? There are advantages and disadvantages, or you can say not exactly disadvantages, but the problems that are there which needs to be overcome before implementing benefits or while implementing benefits. एक बार फिर से let's do a quick revision of what benefit is. Benefits are the good to have things in the organization. किसी भी organization में आपके बेसिक पे और अलाउंसेस जो मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो मॉनेटरी चीजें हैं जैसे सैलरी, उसके अलावा जो चीजें आपको ऊपर से फैसिलिटीज की तरह दी जाती है, यू नो, लाइक फैसिलिटीज. I explained it to you the other day how things which are in addition to what you are getting is always good for the employees, good for the employee psychology, like cafeteria for you or stationery for you, right? Likewise, जैसे कोई कंपनी आपको अगर पिकअप एंड ड्रॉप दे रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कि उनकी अपनी कैब है and they'll pick you from that place, you be there and they'll pick everyone from that place. Whosoever belongs to that area can come to that spot and they'll pick you from there and they'll drop you at a common without charging anything. Is it not a benefit? क्योंकि otherwise आपको अपने पैसे खर्च करके आने पड़ेंगे. तो अगर आप सेम सैलरी में दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे, you will always be retained in one organization because of the benefits that are provided by that organization. हम हमेशा benefits calculate करते हैं. I already told you the major function, benefits का main function welfare था. ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए उनको बहुत सारी बेनिफिट्स देती थी, पर अब इसका जो रोल है बेनिफिट्स का ऑर्गेनाइजेशन में, वो वेलफेयर से कहीं बड़ा हो चुका है. With globalization and so many opportunities online, offline, that you can learn new skills. Okay, you can learn new skills. You have the opportunity to switch your job more often. We learned 2 new skills. जैसे mainframe, credit card पे technology में mainframe अभी भी बहुत important है. mainframe पे जो लोग काम करते हैं, say you have a software, say you have an app, मान लो YouTube है, आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवानी है, तो आप किसी आईटी वालों के पास जाएंगे कि आप उसका कोड डेवलप करो. कोड डेवलप करेगा तभी तो उसमें कस्टमाइजेशन होगा. अब उस कोड का लैंग्वेज या उस कोड की स्किल किसी बंदे के पास है, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी प्रेफर्ड. और वो क्या है, वो स्किल है. एक आप कोर्स कर सकते हैं या आप 2 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो सकते हैं उस पे, राइट? So this way what happens that your ability to switch is more and your tendency to switch becomes higher. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए बेनिफिट्स प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है. बेनिफिट 2 चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक आपके वेलफेयर के लिए, दूसरा कंपनी सिर्फ वेलफेयर थोड़ी सोचती है, कुछ उसका भी फायदा हो ही रहा होगा. ये फायदा हो रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड फील करेंगे. You will feel more attached to the ये benefits है. आप जब compare करेंगे उसको, you will find that some other person is getting lesser benefits at the same salary, right? उसके बाद benefits में जो लोग, आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉइज रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब को लो लेवल मैनेजमेंट मानते हैं, इनको रिटेन करने में, और जो हाई लेवल अथॉरिटीज हैं जैसे कि हाई लेवल मैनेजमेंट है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, प्रेसिडेंट, ये सब अगर कंपनी छोड़ के जाते हैं
तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है और बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज दे आर द माइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोको कोला का वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के चला जाएगा और असिस्टेंट मैनेजर छोड़ के चला जाएगा, दोनों में फर्क होगा ना। इसीलिए उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप जॉब में प्रमोट होते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी बेनिफिट्स बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे मान लो किसी दवा की कंपनी है, कोई अच्छी दवा की कंपनी एमएनसी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 करोड़ है, ठीक है, 1.5 करोड़ ऐसे रहती है सैलरी उनकी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज होगा। अब 1.5 करोड़ वाले को तुम 10 लाख बढ़ा ही दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? कोई फर्क पड़ेगा? जिसकी 3 लाख सैलरी है उसको ना 10,000 में फर्क पड़ता है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दिस, तो बेनिफिट्स जो ऊपर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ज्यादा टैक्टफुली डिजाइन करना होता है कि उनको ऐसे बेनिफिट मिले जिसकी वजह से उनको ये, उनमें ये रिटेंशन की कैपेबिलिटी बढ़े कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहेंगे। अब उनके लिए किस तरीके का डिजाइन पैकेज होगा? उनको गोवा का ट्रिप दोगे तो कोई फायदा होगा? 50-60 हजार 1 लाख का गोवा का ट्रिप उनको क्या क्या फायदा करेगा? नो, that is useful for people like us, middle class people, right? तो उनके लिए जैसे यूरोप का पैकेज, फैमिली पैकेज, यूरोप घूमने के लिए, चार्टर्ड प्लेन, कंपनी का अकोमोडेशन 4 BHK एकदम पॉश एरिया में 4 BHK अकोमोडेशन ऐसे आप दे दें, कंपनी की कार, नॉट जस्ट फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर पर्सनल यूज आल्सो। इस तरह के बेनिफिट्स डिजाइन होते हैं उनके लिए। अदरवाइज आप देखेंगे जब हम नॉर्मल बात करते हैं तब आप देखेंगे जैसे दिवाली में मिठाई देना कंपनी का, ये एक तरीका होता है। these are gesture to make the employees feel more belonged to that organization, ठीक है? दिवाली में आप मिठाई देते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती है ना, बॉम्बे डाइट का बेडशीट का पूरा पैकेज देती है, 2 बेडशीट होते हैं विद पिलो कवर्स, they have this towel का set, मतलब something which is worthy and you feel worth of it also कि मुझे कंपनी से मिला है। समझ आ रहा है बेनिफिट से? बेनिफिट्स का इंपॉर्टेंस तब ज्यादा बढ़ जाता है when you are calculating, when you are comparing it with the same salary. Say for example, you are also getting 35,000, your friend is also getting 35,000. You'll start comparing, okay, this was the monetary thing. What are the other non-monetary benefits that you get in that organization? You'll compare it with yours and then you'll decide, no, okay, I'll stay here. This is better. समझ आ रही बात? इसमें जो मैंने बताया आपको कि हाई लेवल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद पैसा आपको मोटिवेट करना बंद कर देता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपके लिए जॉब का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन जब आप 5-6-7 साल सेटल हो जाएंगे जॉब में, फिर आपको लगेगा पैसा इज नॉर्मल थिंग, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसा तो मिलना ही है। बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहा है मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो ये एक ये भी होता है ESOP, ये बताएंगे क्लास में, डोंट राइट डाउन राइट नाउ। ESOP, दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो आपको उस कंपनी का शेयर दिया जाएगा एट अ लोअर प्राइस than what exists in the market, ठीक है? and you can sell it off after a fixed lock-in period. ये काफी कम प्राइस में मिलता है, इसीलिए, और ये ज्यादा मिलता है तो it makes a substantial impact on your salary. हाँ, ये सब दिया जाता है जनरली हाई लेवल मैनेजमेंट को, जनरली फ्रॉम मिडिल टू हाई लेवल। इससे दो फायदा होता है, एक, आप मिनिमम लॉक इन पीरियड के पहले उसको तो बेच सकते नहीं है, अगर आप कंपनी छोड़े तो वो पैसा गया, तो ये इस लालच में 3-4 साल स्टे करते हैं लोग। दूसरी, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी नहीं है, मुझे मोटिवेशन नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर ही काम हो गया तो क्या हो गया, मेरा थोड़ी है। लेकिन जब मुझे इसका ओनर बना दिया जाएगा फिर तो ये मेरा अपना हो गया। शेयर्स खरीदने से क्या होता है, यू गेट अ स्मॉल ओनरशिप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको भी लगेगा कंपनी अच्छा करे, डिविडेंड्स मिले तो हमें भी मिलेगा। शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड मिलता है ना, समझ में आया? ये सारी चीजें बेनिफिट्स की तरह अब पे पैकेज में बनाई जाती हैं ताकि एम्प्लॉइज को
एचआर ये बात कंप्लीटली समझ चुकी है कि एम्प्लॉयज को खुश रखना बहुत जरूरी है, वरना वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। सीधी सी बात, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है, आप काम कर रहे हैं तब तक करेंगे जब तक दूसरा मौका ना मिले, जहां दूसरा मौका मिलेगा आप निकल लेंगे, राइट? That is why to keep the employees happy in the organization is the major purpose of benefits, to make them engaged, to make them attached. Okay, you wrote what is benefits, now write down. अच्छा थोड़ा और सुन लो। बेनिफिट्स में जैसे कोई क्लब है, क्लब का मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई क्लब है जिसमें मेंबरशिप फीस है, मंथली फीस है, उसको रिन्यूअल चार्ज है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दिस इज अ बेनिफिट। कई बार आप देखेंगे कि जैसे कर्नाटका में बैंगलोर में इट्स अ हब ऑफ आईटी कंपनीज, यू नो दैट। तो वो कई बार क्या होता है कि दे विल टेक यू फॉर अ टीम ट्रिप, they'll take you to Coorg, they'll take you to Mysore, they'll take you for a free lunch, they'll take you to a catered lunch, team lunch। मतलब अगर आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, अब हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? The work pattern is changing, this entire paradigm is changing from individual to team work। एक टीम को प्रोजेक्ट असाइन होती है, ठीक है? तो जब टीम को प्रोजेक्ट असाइन होती है तो क्या होता है कि वो टीम अगर अच्छा करती है, the manager feels that okay, as a part of benefit they should be taken to a free lunch or a time off or something like that, right? ये सब कुछ benefit में आता है। now you write down pros of benefit, PROS, pros of benefit। it increases employee recruitment, it increases employee recruitment, second, it increases employee retention, increases employee retention यानी एम्प्लॉय के रुके रहने की का चांसेस बढ़ जाता है। it increases employee retention, there's one more point, I'll explain it to you later, okay? You just write down right now. Through FBP, which is flexible benefit plan, through FBP, flexible benefit plan, employees can control their benefits, employees can control their benefits, Ma'am, flexible benefit plan means? yeah, be louder, Ma'am, flexible benefit plan means? बताते हैं, लिख लो फिर बताते हैं। Through FBP, employees can control their benefits. Next point, benefits make compensation package attractive. Compensation package attractive and competitive. Compensation package attractive and competitive. Done writing? Next, right. Cons of benefits.
cons of benefits. It requires time and administrative resources. It requires time and administrative resources. It requires you still writing? First point? Done writing? Okay. It requires time and administrative resources. Second, it requires exceptional communication for deploying. It requires exceptional communication for deploying a flexible benefit program. It requires exceptional communication for deploying a flexible benefit plan or program, whatever. It can be costly. It can be costly. This was all about benefit. 2-4 पॉइंट और है जो एक्सप्लेन करना है. FBP क्या होता है? फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स प्लान. नाम से समझो. फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान का क्या मतलब होगा? कंपनीज, ये चीजें कंपनीज में बहुत कॉमन होती जा रही है. फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान. आईटी इंडस्ट्री वगैरह इसमें बहुत वास्ट रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे लोग हैं, तो काफी सारी चीजें वहीं से शुरू होती है. FBP is flexible benefit plan. This is becoming very common both in employers and employees because it suits the employer also and employees also. क्या होता है FBP? इसमें कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स ऑप्शन रखती है and you can choose according to your own requirement, your own lifestyle, your own need and suitability कि मुझे कौन सा बेनिफिट प्लान अवेल करना है. नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी का ये बेनिफिट प्लान है, तो आपको चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए. लेकिन एफबीपी में क्या होता है कि द कंपनीज विल ऑफर यू अ चॉइस टू चूज योर बेनिफिट प्लान्स. अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके का बेनिफिट प्लान्स देती है. ठीक है, जैसे बहुत सारे बेनिफिट प्लान्स हैं, जैसे रिटायरमेंट का प्लान है, इंश्योरेंस का प्लान है, रिइंबर्समेंट है, उसमें व्हीकल का ड्राइवर का पैसा आपको मिलेगा, व्हीकल पार्किंग का मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं. और रिइंबर्समेंट आपका 15,000 तक है महीने का, तो आप सबका कई जगह पे क्या होता है कि आप सिर्फ अपना रिइंबर्समेंट बिल भर सकते हैं, यानी आप अपना टाटा स्काई का रिचार्ज, आप अपना फोन का रिचार्ज, आप अपना नेटफ्लिक्स का रिचार्ज उसको रिइंबर्स करवा सकते हैं. लेकिन कई सारी जगह क्या होता है कि आप 15,000 तक दे सकते हैं, तो आप घर में सबका समेट के दे दीजिए. ठीक है, बीवी का, मम्मी का, पापा का, यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है. मान लो मेरा एक ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ, व्हाई वुड आई नीड अनदर मेडिकल इंश्योरेंस? देन आई विल गो फॉर सम अदर चॉइस, राइट? इसी को कहते हैं फिक्स्ड बेनिफिट प्लान. इसमें कैफेटेरिया का भी प्लान आ सकता है कुछ, या जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने पहले से एलआईसी कराया, आई डोंट नीड एनी रिटायरमेंट प्लान, आई हैव डन माय एसआईपी, आई डोंट नीड दैट. ठीक है, तो हम चूज कर लेंगे कि क्या हमको सूट कर रहा है, मेरे पास किस चीज की कमी है, आई विल गो फॉर दैट अकॉर्डिंग. ठीक, अब ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा यू थिंक विद द डायमेंशन ऑफ एन एम्प्लॉयर. ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख एम्प्लॉय हैं, फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान इंप्लीमेंट हुआ है. अब आप सोचिए कि ये कितना डिफिकल्ट है हर एक एम्प्लॉय के चॉइस के हिसाब से उसको देना और उसका पेरोल डिडक्शन करना, राइट? पेरोल डिडक्शन करना उसका, सबके पेरोल में अलग अलग डेटा एंड फिगर्स रहेगा इसकी वजह से. इसीलिए बेनिफिट्स को इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं. एंड इट इज अ मेजर कॉस्ट. आपको फ्री में मिल रही है, कंपनी तो बर्न कर रही है उसको. As per data, it is estimated
that as per a data it is estimated that किसी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट में 31% तक जो रिक्रूटमेंट चार्ज होता है वो किसका होता है? टोटल चार्ज किसी, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बेनिफिट पढ़ रहे हैं ना, 31% तक रिक्रूट करने का जो पैसा होता है वो बेनिफिट में चला जाता है। इतना पैसा, अगर इतना पैसा एक एम्प्लॉय पे हो रहा है तो सारे एम्प्लॉयज को अगर आप कलेक्टिवली जोड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे कितना लोड आता है पैसे का। के लिए दैट इज व्हाई एक प्रॉपर बेनिफिट प्लान इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और उसको करने के लिए कंपनी को कंप्लीट कॉग्निजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके पास उतना देने की कैपेसिटी है कि नहीं, और अगर कैपेसिटी है भी तो भी it should not be an implementation disaster। कैसा ना कि इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी को समझ आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है, आप किसी का पेरोल डिडक्शन नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए। समझ में आई बात कि कोई नई पॉलिसी लागू करनी है इस कॉलेज में तो उसके लिए क्या होते हैं, आप वो पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजर का वो डिसेमिनेटर का भी रोल होता है। फिर ये कॉलेज क्या करेगी, उतने उतने फैकल्टी अपॉइंट करेंगी कि ऊपर से जो ऑर्डर हुआ है उसको सही से इंप्लीमेंट करना, बच्चों को सही से समझाना है कि भाई कोर्स में चेंज है या कुछ होने वाला है ऐसा कुछ, राइट? नहीं तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण टोटल chaos हो जाएगा ना, और वो पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। यही होता है बेनिफिट प्लान के साथ भी कि बेनिफिट को बहुत टैक्टफुली, बहुत लॉजिकली और बहुत स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है और टाइम भी बहुत लेता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, एंड टाइम इज मनी इन बिजनेस। समझ में आया? विद दिस वी कंप्लीट बेनिफिट्स। थर्ड कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट है उसके बारे में आपको जानना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस मैम। आ रहा है। अब इसमें एक और कंपोनेंट ऐड कराया हुआ था इंसेंटिव का। You have to understand the difference between benefits and incentives. अभी हम इसके सब इतना पढ़ा देने के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे तो सब सही सही आंसर करोगे, ठीक है? इंसेंटिव इज ऑलवेज परफॉर्मेंस बेस्ड। इंसेंटिव का मतलब ही परफॉर्मेंस होता है। आप कहीं देखे होंगे जब भी सैलरी कभी आएगी ना, जनरली मार्केटिंग सेल्स वालों की, जहां टारगेट अचीव, इंश्योरेंस वालों की जहां टारगेट अचीव करना होता है, वहां का ऑफर लेटर देखना आपको इस तरीके से देगा, 3.5 लाख सीटीसी, ब्रैकेट में छोटा सा लिखेगा 2.6 इज फिक्स्ड, बाकी परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब यही मिलेगा। बाकी ये जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अचीव करते हैं और आपको कितना दिया जाएगा। तो इंसेंटिव का क्या मतलब समझोगे? परफॉर्मेंस बेस्ड। आप देखेंगे जनरली कि जहां डायरेक्ट सेल्स की बात आ गई, इंश्योरेंस बेचना है, ये सब जो आदित्य विजन और ये सब जो लोग बेचते हैं इनके सैलरी में होगा ये इंसेंटिव, जितना बेचोगे उतना। कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है देखो ना, नेचर ऑफ जॉब से तुम समझ जाओगे कि कस्टमर ओरिएंटेड है एकदम, तो देयर विल बी। और अलग आदित्य विजन क्या करता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग बंदा रखता है, गोदरेज का अपना रहेगा, वर्लपूल का अपना रहेगा, दे ऑलवेज ड्रैग यू सर यहाँ खरीदिए मेरे पास खरीदिए। व्हाट हैपेंस फॉर एवरी सेल दैट दे डू दे गेट इंसेंटिव। इसीलिए इंसेंटिव के बारे में बस इतना जानना है कि इंसेंटिव इज परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, एंड इंसेंटिव इज मॉनेटरी इन नेचर, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। 3 कंपोनेंट खत्म किया हमने। कौन कौन सा? बेस पे, अलाउंसेस, incentives, fourth is reward and recognition.
cause and recognition. How many of you have studied motivation? Motivation कुछ पढ़ा है? पढ़ा है? कोई थ्योरी पढ़ी है? इसे पढ़ाने के पहले ये थोड़ा सा बताना जरूरी है. लोड नहीं लेना है सब चीज समझने के लिए. Make this class a fun class. Everything you don't need to write down. If you are attending the class, you will get it. क्या है? पिरामिड शेप लग रहा है, ट्रायंगल शेप है. पहली चीज, अब्राहम मैस्लो was an American psychologist. Okay? अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वो पढ़ना होता है. This theory is about motivation. आप रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन पढ़ेंगे, उसके पहले मोटिवेशन समझना जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा आपकी थ्योरी समझा रहे हैं. अब्राहम मैस्लो की ये थ्योरी है जिसमें उन्होंने बताया कि we are all motivated by our needs. ठीक है? उन्होंने कहा कि हमें सब चीज की चाहत एक साथ नहीं होती है लाइफ में. ये ऑब्वियसली एक रिसर्च वर्क था जो कि किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स पे किया गया था, बहुत सारे वर्कर्स पे किया गया था. और तब कोई थ्योरी तो इसी तरह बनती है ना. आप रिसर्च मेथोडोलॉजी देखना, एक होगा तुम लोगों को पढ़ना, उसमें पढ़ना कि रिसर्च कैसे किया जाता है. सैंपलिंग उठाई जाती है, कुछ होता है जो फुल होता है. जैसे कि जब सेंसस काउंट होता है तब एक एक घर में सेंसस काउंट होता है. 10 साल में एक बार सेंसस होता है. सेंसस मतलब सब तो एक एक यूनिट को काउंट किया जाएगा. लेकिन अगर हमको यहाँ रिसर्च करना है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप देखें बाहर में कहीं बिग बाजार में या ये सब चीजों को वो लोग स्पॉट करते हैं, फिर वहां पे वो आपको, आप YouTube सर्च करते होंगे तो आपको वो एक रिसर्च का ऐसे सर्वे का आता होगा कि विच प्रोडक्ट आर यू लाइकली टू बाय. शैम्पू है या कोई ड्रेस है, होता है ना. तो ये भी रिसर्च करने का तरीका है कि सैंपलिंग उठाई जाती है. तो अब्राहम मैस्लो ने ये बोला कि हमें जिंदगी में हर चीज की चाहत एक साथ नहीं होती है. Once we fulfill our needs, एक बार में एक नीड जब हम लोग पूरी कर लेते हैं अपनी, उसके बाद ही हमें दूसरे नीड की चाहत होती है. ठीक है? इसीलिए इस स्ट्रक्चर को पिरामिड शेप में बनाया गया है और रैंडम ऐसे नहीं बनाया. उनके हिसाब से कुछ हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं, लोअर ऑर्डर नीड्स जो ऑर्डर में नीचे होती हैं, कुछ हमारी हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, जब हम अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स पूरी कर लेते हैं तब हम अपने हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ बढ़ते हैं. लोअर ऑर्डर नीड्स में क्या आता है, आप ये वर्क प्लेस के हिसाब से समझेंगे, बट यू कैन रिलेट इट विद योर ओन लाइफ आल्सो. लोअर ऑर्डर नीड्स में सबसे नीचे, इसको ट्रायंगल शेप बनाने का क्या मतलब है, ये नीड सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम की नीड होती है, उससे कम. सबसे नीचे जो नीड होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड. उसके बाद जो नीड होती है वो होती है सेफ्टी नीड. उसके बाद जो नीड होती है वो होती है सोशल नीड. उसके बाद नीड जो आती है वो होती है सेल्फ एस्टीम नीड. और लास्ट में जो नीड आती है वो होता है सेल्फ मोटिव actualization. Abraham Maslow said that this is physiological need. ये सबसे लोअर ऑर्डर नीड होती है. जब तक इंसान की ये नीड फुलफिल ना हो वो ऊपर नहीं बढ़ सकता है. फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है, खाना, पानी, कपड़ा, एयर. समझ में आएगा? This is there in physiological needs.
Ma'am, that is related to livelihood. बोलो. Ma'am, indirectly that is related to livelihood. Related to livelihood. Lively. Yes. अब आप सोच ही सकते हैं कि जिसको खाना नहीं मिलेगा वो क्या सोशल सोसाइटी में इधर उधर घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा ना. उसको कोई सोशल नीड नहीं चाहिए. अगर सुबह से शाम एक लंच टाइम अगर निकाल दिया जाए तो हालत पूरी हो जाएगी. अब आप उस वर्कर के बारे में सोचिए जिसको जिसको ये पता नहीं है कि सुबह अगर खा लिए तो शाम को खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे. राइट. So this is related to livelihood. This is the lowest in the hierarchy. पानी, हवा, खाना, ये सब रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं वो जरूरी होती है. उसके बाद हम जाते हैं सेफ्टी नीड्स के लिए. इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उस टाइम में जाना होगा जब ये थ्योरी फॉर्मुलेट हुई. जनरली मोटिवेशन थ्योरीज आर गिवन फ्रॉम 1950s टू 1970s. वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी उस वक्त. इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही थी और वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत होता था. बहुत सेफ्टी वगैरह नहीं होता. आए दिन एक्सीडेंट होता था. एम्प्लॉयर को तुमसे कोई काम नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, अब यू आर ऑफ नो यूज टू द एम्प्लॉयर. द एम्प्लॉयर विल थ्रो यू आउट ऑफ द कंपनी. नाउ यू आर यूजलेस टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर होम. और तुम्हारे पीछे अगर तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा बच्चा है, ठीक है, हाउ विल दे सर्वाइव? ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो कोई नहीं लेगा. तो सेफ्टी में वर्कर्स, तो अब्राहम मैस्लो का कहना है कि एक बार जब हमारी ये नीड हो जाती है कि हम खाने पीने का जुगाड़ है, रहने को घर है एंड एवरीथिंग, देन वी वांट सम सेफ्टी. सेफ्टी मतलब हम एक एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट में रहें, डर ना रहे, हम सेफ फील करें कि हम काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम मर जाएंगे. ऐसा अगर आपको फील हो तो आप हमेशा कितना डरे रहेंगे. राइट. आप एवरी डे यू आर गोइंग टू अ वर्क प्लेस एंड यू आर स्केयर्ड of the safety things. तो सोचिए कि वो साइकोलॉजिकली क्या कंसंट्रेट कर पाएगा, हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा, परेशान रहेगा. राइट. कुछ सेफ्टी, कुछ वो बचा ले अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कल को बीमार पड़ जाए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट. ये होती है सेफ्टी. देन यू मूव ऑन टू सोशल ऑर्डर नीड्स. कैन यू कीप वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर years and years without meeting your loved ones? ये जनरली जैसे योर स्टूडेंट्स अभी मम्मी किसी रिलेटिव से मिलने बोलेगी तो ये भी अरे क्या. राइट. हमेशा ऐसा जाना होता है कि नहीं? यार मम्मी तुम चले जाओ, मुझे होता है ना. बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ना, जब आप स्टॉप करेंगे 9 बजे से 6 बजे तक, तो फिर लगेगा यार आई वांट टू गो बैक टू माय फैमिली. थोड़ा सा फैमिली के पास जहाँ पे कि यू फील अप्रिशिएटेड, यू फील लव, यू फील सेफ साइकोलॉजिकली. हमें अपने फ्रेंड सर्कल, क्लास में इतने लोग होते हैं पर फ्रेंडशिप चूज किया हुआ रहता है ना. उनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं, उनके साथ आप जानबूझकर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. यू फील गुड अबाउट इट क्योंकि एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होता है. दे हैव एक्सेप्टेड यू एंड यू हैव एक्सेप्टेड देम. एंड सिमिलरली गोज विद द फैमिली. और वर्क प्लेस पे आप थोड़ा बाहर आना जाना चाहते हैं. राइट. तो फिर आती है सोशल नीड्स कि हमारी सोशल नीड्स भी है. ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारी सोशल नीड्स है और उसको भी फुलफिल करना हमारे साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है. ओके. नेक्स्ट यू मूव ऑन टू सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दिस इज द पॉइंट where you will understand reward and recognition. Okay. This is the point where you will understand reward and recognition. अब इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए. आपके पास घर है, खाने को है, एवरीथिंग. यू ऑल बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, तभी आप यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हैं. राइट. यू आर नॉट डिप्राइव्ड. 19-20 की बात अलग है, पर आप एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है. ये आप रियलाइज कीजिए कि आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, दे आर देयर टू सपोर्ट यू, यू गॉट एवरीथिंग. उसी तरह से आप जॉब में चले गए, यू गॉट एवरीथिंग. आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका आपने घर भी बना लिया,
आपके पास सब कुछ है, सैलरी में आप अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। उसके बाद अब्राहम मैस्लो के हिसाब से you have to focus, you know, your need gets higher promoted for self esteem. आपको इज्जत चाहिए वर्क प्लेस में, ठीक है? ये आप समझिए कि मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। सेल्फ एस्टीम, आपको लगेगा कि आपको वर्क प्लेस पे 6 साल काम करनी है, जब फ्रेशर होते हैं तो सब फ्रेशर 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 4-5 साल काम हो जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। कैन बी एक्सपीरियंस टू, मुझे उस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जो मेरी डिग्री है, मुझे ऑफिस में एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन चाहिए, आई नीड रिकग्निशन फॉर माय वर्क, आई नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है, आई नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर माय वर्क। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी फील गुड व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स अस, है ना? आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट किया जाए तो अच्छा लगेगा। आई एम अ टीचर, इफ आई एम अप्रिशिएटेड कि मैम अच्छा पढ़ा रही है तो अच्छा लगेगा, लगेगा ना? अच्छा, कोई अप्रिशिएट करेगा तो। Ma'am, when someone criticizes, then सॉरी, when someone criticizes, समवन then what we क्रिटिसाइज ऑन द react. कॉन्ट्ररी, बिल्कुल, अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप यू फील नॉट गुड अबाउट इट। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन का पूरा फंडा ही यही है। सेल्फ एस्टीम का मतलब जो चीजें आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दे रही है, समथिंग दैट इज मेकिंग यू फील वर्दी अबाउट योरसेल्फ, कि आपकी वैल्यू है। आपको एक ऑफिस में देखिए बहुत सारी चीजें ऑफिस में या थियरीज जो पढ़ाई जाती है वो सब ऑफिस में इंप्लीमेंट होता है। हम जब थ्योरी पढ़ते हैं हमें लगता है कि अच्छा ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है कंपनी, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द थ्योरी, सब कुछ का रिसर्च हो चुका है और पता है बाय रिसर्च के एम्प्लॉइज खुश होते हैं इससे, एम्प्लॉइज के मोटिवेशन पे फर्क पड़ता है इससे, एम्प्लॉइज ज्यादा बेहतर काम करेंगे इससे, इसीलिए वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट की जाती है। सेल्फ एस्टीम में और भी चीजें आती हैं, जैसे आपको एक, अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह को देखा है, सब एक लाइन से लैपटॉप लेके बैठ रहे हैं। अब उसमें मान लो बहुत सीनियर हो, यू डूइंग समथिंग गुड एंड यू गिवन योर ओन क्यूबिकल टू वर्क, आपको अच्छा फील होगा ना कि आप अलग से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपका एक क्यूबिकल है, यू फील गुड अबाउट इट। अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाए पूरे टीम को कि भाई इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, टाइम के पहले करके दिया और बहुत एफिशिएंसी के साथ किया, यू विल फील गुड अबाउट इट। टीम की मीटिंग हो रही है, ग्रुप की मीटिंग हो रही है, उसमें आपको अगर अलग से खड़ा करके बोला जाए कि दिस पर्सन हैज बीन वेरी गुड इन हिज वर्क, हाउ गुड यू विल फील, कितने लोगों के सामने में अप्रिशिएट किया गया। इसीलिए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन का इस नीड को फुलफिल किया जाता है, इसीलिए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत छोटा लगता है पर इसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉइज के ऊपर, ठीक है? अब समझ, और हाँ एक पढ़ा दिए तो बता देते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? जब आप सारा नीड फुलफिल कर चुके होते हैं, सब कुछ आप अपना फुल पोटेंशियल जब रियलाइज करना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आपने अपना फुल रियलाइज कर चुका है। अब आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं, मदर टेरेसा। जब हम दूसरों की लाइफ के लिए को जब इन्फ्लुएंस करने की, आपकी सारी नीड फुलफिल होने के बाद जब इन्फ्लुएंस करने के लिए आपकी टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन हम साथ में यूज करते हैं वर्ड, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिवॉर्ड जनरली मॉनेटरी होता है और रिकॉग्निशन नॉन मॉनेटरी, समथिंग व्हिच इज इंटैंजिबल। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए रिवॉर्ड के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, रिवॉर्ड मॉनेटरी होता है, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको एक गिफ्ट कंपनी दे दे, एक बोनस दे दे, प्रॉफिट शेयरिंग दे दे कंपनी की। रिवॉर्ड के साथ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट टीम बिल्डिंग पे आ गया है, the organizations are working in teams,
तो किसी एक बंदे को उठा के अगर आप मॉनेटरी रिवॉर्ड दे देंगे तो दूसरे के ऊपर ये डिमोटिवेटिंग इम्पैक्ट करेगा, करेगा ना। तो वो खिचखिच करता रहेगा पूरा टाइम कि इसको पैसा मिला, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज सोचनी पड़ती है कि कुछ भी हम ऐसा ना कर दें कि दूसरे के ऊपर उसका बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ जाए, क्योंकि उसके तो सारे एम्प्लॉइज हैं। कल को हो सकता है वो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर दे उस पहले वाले को, लेकिन उसके लिए हर एम्प्लॉय का केयर करना बहुत जरूरी है, राइट। इसीलिए रिवॉर्ड मॉनिटरी होता है। रिवॉर्ड जब दिया जाता है जैसे इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ये इशू है कि टीम में से किसी एक बंदे को पिक पॉइंट करना होगा। और रिकग्निशन के साथ क्या है कि वो दैट इज सो लेस कॉस्टली। एप्रिसिएशन, रिकग्नाइज करना, किसी टीम मीटिंग में आप रिकग्नाइज कर दीजिए कि इसने बहुत अच्छा काम किया। आप पर्सनली उसको मैनेजर अपने क्यूबिकल में बुला करके बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या सबके सामने अप्रिशिएट करें, जिससे मोटिवेशन उसको तो मिले ही और साथ में बाकियों को भी मिले। आपने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में बाहर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके उसका फोटो डाल दिया जाता है, फोटो लगाया जाता है बुलेटिन बोर्ड पे, आते जाते लोग देखते। यू फील गुड अबाउट दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दे डू मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी, होता है ना। तो रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन में यही फर्क होता है कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट जैसा ही है ऑर्गेनाइजेशन कि आपको ये सैलरी के ऊपर दिया जाता है। ऐसा ना कि रिवॉर्ड में गिफ्ट दे रहे हैं और उधर से सैलरी काट दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड इज एक्स्ट्रा फ्रॉम योर सैलरी, कि आप कुछ अच्छा करें तो आपको रिवॉर्ड मिले, गिफ्ट मिले या प्रॉफिट शेयरिंग या एनी सरप्लस बोनस। कई एम्प्लॉइज हैं जैसे 10 साल आपने कंपनी में कंप्लीट किया तो उसके लिए एक शील्ड या मोमेंटो, एक सर्फ मोमेंटो इज गिवन टू यू, लाइक यू फील गुड कि हाँ मैंने कंपनी को 10 साल दिए। ऐसा होता है। ओके, we will write it down in the next class कि rewards और recognition क्या होता है। and with this we complete 4 components of salary. अब next class में we will write something about rewards and recognition and statutory and non-statutory benefits. Okay, wait students, don't log out. Okay, I'll take the screenshot.